join me in welcoming Mr. Jasola to give us an overview of the national seminar. A very good morning to all distinguished guests, faculties, staff, and my dear students. I welcome you all to Himalayan Institute of Technology, and I welcome you all to the ICSSR-sponsored national seminar on Atmanirbhar Bharat, Unpacking Education on the Context of NEP 2020. Today, in our panel, we have esteemed academicians and senior people from the industry who are best in their field to talk about Atmanirbhar Bharat and how we can make India self-sufficient with using NEP 2020. I would like to thank you all. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am, for taking out time from your very busy schedule. We understand that you are very busy. Thank you so much. And without taking any more time of yours, I would like to start the conference with the much awaited keynote speeches by our guests. Thank you so much. Thank you so much, sir, for showing us the roadmap for the conference. Coming together is a beginning. Keeping together is progress. And working together is a success. It was indeed this mantra of working together that has brought us here where we are. We have with us some very special guests today. To begin with, we have Professor Alok Saklani, our very first special guest. He is engaged in academics for almost 45 years, both in Delhi and Uttarakhand, with responsibilities of Dean Commerce and Management. He is a Director, APJ School of Management, New Delhi, and Advisor Academic Quality, SRHU, Dehradun. He has been an active researcher with paper publications in international research journals, conferences, presentations across Europe, Asia, and America, across disciplines of marketing, anthropology, and many more. He is also a reviewer with several research journals in India and overseas on various boards across universities, besides continuing as a keen faculty and a corporate trainer. Sir, I would welcome you on the dais to please come up and share some words with us. Sir. No? So thank you, Ritu, for inviting me here on this podium. And thanks to, there we are, Dr. Alok Jasola, right, the group director, Mr. Agrim, the deputy director, right? Yes. Okay. All the faculty members who organized this seminar, and my co-panelists here, Bharti ji, Dr. Kapoor, Dr. Harish, Registrar Saab of UTU, or Dr. Madhu. So a very good morning to all of you. Yeah. We are talking about the national education policy. We are talking about Atmanirbhar Bharat, and I'm sure there'll be a lot of discussions on this as the day progresses. Many of you will be giving presentations, and there'll be some deliberations along with it. Because I'm not part of that structured session, so I have the freedom to, go on a different trajectory. So pardon me if I go too far away, but I'll try to come back each time. Okay. So मैं कहानी यहाँ से शुरू करूँगा कि हम लोग जब छोटे होते हैं तो अपने आप को एक जगह कहीं पाते हैं, राइट? तो पहला सवाल अगर सोचना शुरू कर देता है जब भी बच्चा, वो ये पूछता है मैं कहाँ हूँ, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ, राइट? हम इनफैक्ट हम सभी ने सवाल पूछे हैं, तो हम कहाँ हैं ये हमारे टाइम पे ये ज़रूर ये बात सामने आई है। तो हमें शुरू में तो फुसला दिया जाता है कि ये घर है, ये माँ बाप हैं तुम्हारे,
राइट ये मामा है, चाचा है, फूफू है, एंड सो ऑन, और सब बड़े प्यार से वो करते हैं। धीरे धीरे करके फिर हम स्कूल जाते हैं, जहाँ पे कुछ क्लासमेट्स भी होते हैं, कोई प्यार करता है, कोई दो चार चपत भी लगा देता है, कोई टीचर है, कोई प्यार से बात करती है, कोई डांट डपट भी कर देती है। तब समझ में आता है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा शुरू में हमें बताया गया। एनीवे, फिर और बड़े होते हैं, हमें भगवान के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाता है, गॉड है, ये वो, राइट। धीरे धीरे करके हमें साइंस बताती है कि ये नेचर है, ये अपने आप से ग्रो कर रही है। फिर थोड़ा सा और कोई फिजिक्स भी पढ़ लेता है तो पता चलता है कि कोई बिग बैंग हुआ था 15 बिलियन ईयर्स अगो, और उसके बाद ये शुरुआत हुई, और वो शुरुआत जब हुई तब कहीं पे हम भी वही बने। फिर हमें थोड़ा सा कोई और बताता है कि भाई जो क्रिएटर है और जो क्रिएटेड हैं, जो बनाने वाला है और जो बने हुए हैं, वो एक ही है। शायद अद्वैत में कुछ इसी तरह की बात कही जाती है हमारे यहाँ, राइट। तो हम सभी उस ईश्वर के कण हैं जिसने ये सृष्टि बनाई, तो हम भी ईश्वर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी करना होगा हमें स्वयं ही करना होगा। हम आंख बंद करेंगे, भगवान ये करते तो होगा नहीं, क्योंकि हम ही तो भगवान हैं। उसी के छोटे से अंश से ही पर हम ही को करना होगा, राइट। तो कहीं पे ये बात एज टीचर्स वापस आते हैं। एज टीचर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती कि हम जहाँ भी हैं वहाँ पे हमारी एक भूमिका है, राइट। कहाँ हैं, वहाँ क्या हो रहा है, उसको और आगे देखते हैं। क्या हमारे पास इसके लिए कोई रिमोट भी है? रिमोट है? कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। यहाँ है, राइट। वी डोंट नो वेयर वी आर इन ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स के बीच में कहीं पे एक प्लैनेट अर्थ, वहाँ पे 8-9 बिलियन के बीच में हम एक, राइट। तो बहुत बड़े अननोन में हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, कुछ अता नहीं, कुछ पता नहीं। Technical University. He holds a BTech from IIT Lucknow, ME from NIT Allahabad, and PhD from IIT Delhi. With over 26 years of experience in teaching and research industry, Professor Singh has supervised research of 4 PhD and 64 MTech students. He has published more than 160 research papers in international and national journals and conferences. He has authored and edited 4 books, holding 9 patents and 12 published patents. Professor Singh has received several prestigious awards, which includes Higher Education Leader Award for the year 2023, Excellence in Research of the Year Award 2021, Engineering Excellence Award for the year 2021, Siksha Ratna Puraskar 2013, and has twice received the Best Paper Award at International Conference. Sir, I would like to invite you on the dais. पहले भी था। अगर आप करिकुलम की बात करें तो करिकुलम में आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, आपके कल्चरल एक्टिविटीज़, डिबेट, एक्सटेम्पोर, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड बियॉन्ड द करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सो मेनी एक्टिविटीज़ पहले भी थी, लेकिन उसमें लोग फोकस नहीं करते थे, बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते थे। तो पर्पज़ वही है कि जिसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो उस फील्ड में अपने आप को एक्सपर्टीज डेवलप करे। तो अब सपोज यू हैव टेकन एडमिशन इन इंजीनियरिंग, बीटेक, मान लिया आपने बीटेक में एडमिशन लिया, तो बीटेक में क्या होता है, दैट वन इज ए लिमिटेड करिकुलम। उसको तो आपका जो कोर्सेज है, करिकुलर एक्टिविटीज, वो तो आपको मैंडेटरी पार्ट है, बिकॉज टू अचीव द क्रेडिट, डिफाइंड क्रेडिट, तो आपको वहाँ जाना ही जाना है। वो उसके अलावा भी जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी उसमें लोग फोकस नहीं करते थे। तो अभी उस चीज़ों को, उन्हीं चीज़ों को ऐड कर दिया गया है। सपोज पूरे बैच में 40 या 60 का बैच है, उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको पेंटिंग, जैसे सर बताए कि बहुत लोगों का पेंटिंग में इंटरेस्ट होता है, लेकिन उसको वो प्लेटफॉर्म मिलता नहीं।
वो कहाँ करे उसकी। तो अभी वो चीज़ का कई पार्ट्स में उसको क्रेडिट बेस्ड भी कोर्सेज में आपको डिफाइन किया जा रहा है। इवन यूट्यूब में हम लोगों ने बनाया है, मेजर और माइनर का कंसेप्ट भी रखा है, कई इनोवेशन एक्टिविटीज सब्जेक्ट्स भी डिफाइन किए हैं, सो दैट द स्टूडेंट्स में रीड एंड गो फॉर लैबोरेटरीज। इनोवेशन का बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है, इनोवेशन की हम लोग बात करते हैं, नवाचार इनोवेशन होना चाहिए, होना चाहिए, बातें तो करते हैं, बट वी डिडंट प्रोवाइड एनी प्लेटफॉर्म। कहाँ जाए बच्चा? ऐसा नहीं कि बच्चे के अंदर स्किल की कमी है, स्किल है, इंटरेस्ट है, लेकिन स्किल के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो वो चीज़ें, उस पर फोकस गवर्नमेंट कर रही है, और गवर्नमेंट बार बार फोकस कर रही है कि हर चीज़ की इवन फंड्स प्रोवाइड कर रही है। सो मेनी IITs दे हैव डेवलप देयर सेंटर्स। अगर आप IIT रुड़की में जाएं तो वहाँ पर टाइट करके है, IIT कानपुर में हब है, तो वो लोग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एज वेल एज यूनिवर्सिटीज़ भी अपनी लेवल में, हम लोग भी अपने यहाँ एक सेंटर डेवलप कर रहे हैं, स्टार्टअप एक्टिविटीज़ हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। तो ये सब चीज़ें पर्पज वही है। सिलेबस में रिवीजन हो गया, मेजर आपका कोर सब्जेक्ट हो गया, इफ यू आर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स द माइनर। सपोज आपने किसी सब्जेक्ट में कंप्यूटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप कर रहे हैं, तो आप इंटरेस्टेड है IoT में, ठीक है, IoT का आपका प्लेटफॉर्म है, यू हैव टू कवर अप दिस क्रेडिट, यू अचीव दिस मच क्रेडिट, आपको एक माइनर स्पेशलाइजेशन आप उस फील्ड में मिल जाएगा। बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर, साथ में आपको एक्सपर्टीज वो भी हो गई। तो इसी तरह से चीज़ों को डिफाइन की जा रही है हर जगह, और उस चीज़ में, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप करिए। तो लेकिन वो चीज़ जब तक करिकुलम में चेंजेस नहीं आएगा, तब तक आपके पास प्लेटफॉर्म मिलेगा नहीं, आपको वो बेनिफिट्स मिलेगा नहीं। तो उन्हीं सब चीज़ों का आपका NEP सिखाता है। तो हर कोर्सेज में, चाहे वेदर इट इज साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर, किसी भी फील्ड में, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंसेज, हर फील्ड में आपको ये चीज़ें डिफाइन की जा रही है। तो मेनली इसमें 2-3 कुछ पॉइंट मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। तो मेन प्रिंसिपल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वन इज द फ्लैक्सिबिलिटी। तो जो अभी आप सर ने भी डिस्कस किया, थोड़ा सा हमने भी आपको शेयर किया कि उसका पर्पस क्या है, कि फ्लैक्सिबिलिटी एजुकेशन, स्टूडेंट्स में टेक एनी टाइप ऑफ द फील्ड्स एंड दैट मस्ट बी, वो भी आपका जब तक उसको हम सर्टिफिकेट में या कहीं न कहीं शो नहीं करेंगे, तो तब तक आप इंटरेस्ट लेंगे नहीं। तो उसका पर्पस वही है। दूसरा, यू हैव टू नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन सब्जेक्ट्स एंड करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो पहले हम लोग उस चीज़ को कर देते हैं। एंड वन इज द मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। अभी क्या व्यवस्था की जा रही, ठीक है, सपोज वन इंटीग्रेटेड कोर्स, 4 ईयर यू हैव द प्रोग्राम। कोई बच्चा है, सोचता है कि हम 2 साल में, ठीक है, हमें नहीं अच्छा लग रहा, 2 साल में छोड़ना चाहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, यू कैन लीव, यू विल गेट 1 सर्टिफिकेट कि हाँ ये सर्टिफिकेट आपको मिल गई फॉर दिस पर्टिकुलर डिप्लोमा, या जो भी आपका एक सर्टिफिकेट। 3 साल आपने कर लिया, डिप्लोमा मिल जाएगी। 4 ईयर कर लिया, यू विल गेट द डिग्री। सपोज 5 ईयर प्रोग्राम आपने 5 कर लिया, यू विल गेट द MTech या PG डिग्री, जो भी आपका। तो मल्टीडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट इसीलिए रखा जा रहा है, जिसका 2 साल बाद आपको, ठीक है, बेसिक एलिमेंट्री कोर्सेज होते हैं, यू हैव टू अचीव दैट पर्टिकुलर बेसिक आइडियाज, देन आफ्टर यू विल गो फॉर सम बिजनेस वर्क या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको जाना है, तो आप वहाँ पर आप छोड़ सकते हैं, लेकिन वो आपका 2 साल वेस्ट नहीं जाएगा। वो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दी जाएगी, बिकॉज वो दैट कवर कि हाँ यू हैव ट्रेंड फॉर दिस वर्क। तो ये सब चीज़ें। दूसरा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड द क्रिटिकल थिंकिंग एज वेल एज द एथिकल वैल्यूज। मेजर आज की डेट में एजुकेशन में यही आती है, एथिकल वैल्यू, एथिक्स की बहुत बातें की जाती है। आप जाएंगे NAC के एक्रेडिटेशन के लिए, NBA एक्रेडिटेशन के लिए, तो वहाँ पर उसकी भी वेटेज है हर चीज़ का। तो दीज आर द बेसिक आइडियाज अबाउट द NEP एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir, for your words of wisdom. Our next guest is Shri Anil Kumar Bharti, who is currently working as Assistant Director at Akashvani in Dehradun. He has produced several programs on health education and environment. He produced Swachh Bharat program for 2 years. He is presently presenting Aapki Sehat and Swachh Charcha for AIR Dehradun. He has produced several programs on Education Policy 2020, including interviewing the Central Education Minister, Dr. Ramesh Pokhriyal, and VCs of different universities. Sir, I would request you to come here and please share a few words with us.
धन्यवाद रितु जी। संस्थान के डायरेक्टर जसोला साहब, इस सेमिनार के कन्वीनर अग्रिम जसोला जी, जो कि हमारे युवा भारत के परिचायक हैं, डॉक्टर शिवानी कपूर, प्रोफेसर पुरोहित, प्रोफेसर मधु और प्रोफेसर आलोक सकलानी। नई शिक्षा नीति पर बहुत चर्चा हो रही है कई वर्षों से। विगत 4-5 माह हम चुनाव में व्यस्त रहे और बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट गई। मैं सोच रहा था कि इस नीति का जब क्रियान्वयन होगा तो सबसे बड़ी चुनौती प्रोफेसर आलोक सकलानी जैसे शिक्षकों का होना। क्या हम इस स्तर के शिक्षक पैदा कर पा रहे हैं? हमारे पास ऐसे प्रोफेसर हैं कि जो अपनी बात को रख रहे थे। उन्होंने कहा कि समय ज़्यादा हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगा, कहीं भी समय ज़्यादा नहीं लगा। प्रोफेसर वसीम बरेलवी का एक बहुत प्यारा खूबसूरत शेर है, वो मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे बताना चाहिए कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और हर कोई मंत्रमुग्ध होकर प्रोफेसर सकलानी को सुन रहा था। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी चुनौती है कि ऐसे प्रोफेसर जो डायस में बैठे हैं और उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रोफेसर आलोक सकलानी, कितने सुंदर ढंग से उन्होंने अपनी बातों को रखा और हॉलिस्टिक अप्रोच की बात वो कर रहे थे कि किस तरह से हम ऐसे नागरिक पैदा करें जो हर क्षेत्र में आगे हों, समग्रता उनमें हो। मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। आकाशवाणी सरकारी माध्यम है और लगातार हम प्रधानमंत्री जी के संदेशों को प्रचारित प्रसारित करते रहते हैं। 2020 को उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की और 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा इसके अंतर्गत की गई। उन्होंने कहा कि इस आत्मनिर्भर अभियान का जो उद्देश्य है वो उसके नागरिकों को हर मायने में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना है। और जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो शिक्षा उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कारक के रूप में सामने आता है। प्राचीन काल से ही हमारी जो शिक्षा है वो ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य को सर्वोच्च मानव लक्ष्य के रूप में सामने रखती है। हमारे सामने तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी जैसे संस्थान जो कि बहुशिक्षक, बहुविषयक शिक्षण और अनुसंधान के उच्च मानकों पर खरे उतरते थे। भारत को चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, ब्राह्मी, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य जैसे असाधारण विद्वानों की भूमिका के रूप में, उसकी भूमि के रूप में जाना जाता है। और उसी विज्ञान की प्रणाली को, विश्व ज्ञान की प्रणाली को हम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ हमारे योगदान को पूरा विश्व सराह रहा है, उसको महत्व दे रहा है। हम जानते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों के आगमन से पूर्व हमारी शिक्षा प्रणाली काफ़ी हद तक ठीक थी, लेकिन 19वीं सदी के अंत तक आते आते हमारे जो संस्थान थे लगभग विलुप्त हो गए। शिक्षा मुख्य रूप पर पढ़ाने पर ही या पढ़ने पर केंद्रित हो गई। लॉर्ड मैकाले की जो इच्छा थी उसके अनुरूप हमारी शिक्षा प्रणाली आगे बढ़ी, जो पूरी तरह से विदेशी और जड़ विहीन थी। आज़ाद भारत ने बहुत ही दयनीय भाव से अपनी आज़ादी के बाद का सफ़र शिक्षा के क्षेत्र में आरंभ किया और हम सभी जानते हैं कि 14% उस समय साक्षरता थी और आज जब हम नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं तो लगभग 74% हमारी साक्षरता की दर है। हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो आमूल परिवर्तन लाने चाहिए थे उस दिशा में कई चिंताएं हमारे सामने थी और उन चिंताओं को हमने देखा, उनको समझा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग हमारे समक्ष आया, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968
राष्ट्रीय शिक्षक आयोग 1983-85 और फिर एक बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हमारे समक्ष आई। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून 2009 में हमने पारित किया। उसके बाद कुछ सुधार देखने को मिले। आज जब हम नए भारत की परिकल्पना कर रहे हैं तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी जो 2 शिक्षा प्रणालियां हैं उनमें से दूसरे नंबर पर है। और जब हम विश्व की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें अपेक्षाकृत सुधार भी हुआ है। हम आगे बढ़ते रहे शिक्षा के क्षेत्र में और हमने देखा कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे समक्ष आती है और उसका उद्देश्य देश की जो विकासवादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, दूसरी ओर न्याय संगत और निष्पक्ष समाज का निर्माण करना, इसकी एक आवश्यकता थी, उसका उद्देश्य हमने बनाया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम आधुनिक विचारधारा वाली सभ्यता और एक जीवंत लोकतंत्र हैं जो एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए अन्य देशों के साथ बातचीत करता है। तो इस शिक्षा नीति का, जैसे कि प्रोफेसर सकलानी ने जिक्र किया, कि हम एक नई ऐसी प्रणाली तैयार कर रहे हैं जो 21वीं सदी में जो हमारी वैश्विक लक्ष्य हैं उससे जुड़ा हो और हमारी परंपराओं और मूल्यों के साथ भी जुड़ा हो, उसके अनुरूप हमारी शिक्षा हो। तो जो एक वैश्विक मानसिकता के साथ प्रत्येक व्यक्ति की समृद्ध और जटिल रचनात्मक क्षमता है, उसके विकास पर हम जोर दे रहे हैं। इसमें दुनिया के लिए एक विश्वसनीय आधार बनते हुए आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो परिकल्पना है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें बहुत कुछ देखना पड़ेगा उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। प्रोफेसर सकलानी बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं कि जब हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं और शिक्षा के माध्यम से कर रहे हैं तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ऐसे युवा हैं जिनके लिए वो सब कुछ उपलब्ध है, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। यदि उन चीज़ों पर हम गौर करें, ऐसी हमारी शिक्षा में उनको ट्रेनिंग दी जाए तो ऐसे उत्पाद हम तैयार कर सकते हैं। मैंने कई ऐसे सक्सेस स्टोरीज की हैं जिसमें मैंने देखा है कि एक लड़का शुभम राणा, वो एग्रीकल्चर का ग्रेजुएट है और कोरोना के दौरान वो अपने घर वापस चमोली जाता है और वहाँ वो मौन पालन, मधुमक्खी पालन करता है, सीखता है, जानता है, ऐसे ट्रेनिंग्स करता है कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से और अपना स्टार्टअप शुरू करता है। और आज वो शहद के मामले में एक बहुत बड़ा स्टार्टअप उसका तैयार हो गया है, वो कई युवाओं को भी रोजगार दे रहा है। तो हम ऐसी शिक्षा प्रणाली पैदा करें जो पहाड़ में ही, उत्तराखंड के भीतर ही आत्मनिर्भरता के साथ व्यक्ति काम कर सके। उसे बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जलवायु है, हमारे पास मधुमक्खियाँ हैं, हमारे पास फल हैं, हमारे पास फूलों की खेती है, हमारे पास ऐसे अनाज हैं। तो ऐसी तकनीक जिसमें बहुत ज़्यादा हमें ऊर्जा की आवश्यकता ना हो, बाहर से जो उत्पाद लाने की आवश्यकता ना हो और हम स्वयं उसको उत्तराखंड के अंदर ही पैदा कर सकें। तो जैसे मैंने मौन पालन की बात की, मौन पालन आत्मनिर्भरता के लिए उत्तराखंड के लिए एक बहुत बेहतर विकल्प हो सकता है यदि इसकी शिक्षा हम दें हमारे युवाओं को, उनको प्रेरित करें। मुझे लगता है कि जसोला साहब इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे और यहाँ पर एग्रीकल्चर कोर्सेज को प्राथमिकता के तौर पर आएंगे, क्योंकि हम पिछले 2 वर्षों से लगातार बात करते रहे मिलेट्स की, मिलेट्स के प्रोडक्ट्स की वैल्यू एडिशन करके कैसे हम उन उत्पादों को बेहतर कर सकते हैं। तो इसकी मांग भी बढ़ी है और हम सामान्य तौर पर तो नहीं खाते मोटे अनाजों को, लेकिन अगर फोर्टिस का या मेदांता का डॉक्टर लिख देता है तो हम मल्टीग्रेन के प्रोडक्ट्स खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि ये हमारे भोजन का महत्वपूर्ण अंग रहा है। तो जब हम देख रहे हैं कि आत्मनिर्भरता की ओर हमें बढ़ना है तो कैसे बढ़ सकते हैं? युवा बाहर ना जाएं, उनको यहीं प्रेरित किया जाए, ऐसी शिक्षा प्रणाली हो, सरकारी साधन हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाएं और उनके प्रोडक्ट्स यहीं तैयार हों, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की खपत ना हो। 4 धाम यात्रा चलती है, उसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स, आग की बात की जा रही है कि आग लग रही है, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किए हैं, स्वयं FRI में ऐसा प्रोडक्ट सर तैयार हुआ है। वहाँ के वैज्ञानिकों ने पिरूल की
ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिसमें बहुत खूबसूरत चप्पलें हैं। उन चप्पलों का प्रयोग केवल और केवल हमारे मंदिर परिसरों में हो सकता है, जहाँ पर हम चमड़े के जो उत्पाद हैं नहीं ले जा सकते, हम चप्पल लेके नहीं जा सकते, लेकिन वो पिरूर की जो चप्पलें हैं वो इतनी खूबसूरत है, इतनी टिकाऊ हैं कि हर बाहर से आने वाला व्यक्ति उसे खरीदेगा। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सरकार को टेक्नोलॉजी दी है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी कब धरातल पे आएगी ये सब देखने की ज़रूरत है। तो हम ऐसे उत्पादों की तरफ आगे बढ़ें, उनको प्रेरित करें। और आज का जो सेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम विगत 5 महीनों से बेकार की बातों पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब हमें एक बार पुनः संकल्पित होना होगा कि हम कैसे युवाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे पाठ्यक्रम और ऐसे जो हमारे प्रोफेसर्स हैं जिनके पास बहुत लंबा अनुभव है, उनको ऐसी कमिटीज़ का सदस्य बनाया जाए, उनको चेयरमैन बनाया जाए ऐसी समितियों का। प्रोफेसर सकलानी जैसे व्यक्ति जिनके पास बहुत बड़ा अनुभव है, वो सरकार को मदद दें, उनको सलाह दें और कैसे हम युवाओं को, उत्तराखंड के युवाओं को यहीं पर रोजगार दें। जो पलायन की बात हो रही है और रिवर्स पलायन की बात हो रही है, तो रिवर्स पलायन इस तरह से हो सकता है कि HIT जैसे यूनिवर्सिटीज़ और जो संस्थान है वो कुछ ऐसे पाठ्यक्रम यहाँ पे लागू करें जो युवाओं को आगे प्रेरित कर सकें। आज का ये सेशन बहुत खूबसूरत हो, इसके जो आउटकम्स हों बहुत बेहतर हों, इसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और आप युवा इस देश की भावी पीढ़ी हैं। हम संचार माध्यम के माध्यम से लगातार इस बात को कहते आए हैं कि युवा आगे आएँ, ऐसे पाठ्यक्रम को चुनें। और हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, हमारी जो संस्कृति है, उसके भीतर ही सब कुछ है। इको फ्रेंडली जीवन शैली को अपनाएं, जैसे प्रोफेसर सकलानी बार बार कहते रहे, होलिस्टिक अप्रोच को अपनाएं और शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बने, समाज को आत्मनिर्भर बनाएं। और जैसे प्रधानमंत्री भी अक्सर कहते हैं कि हम रोजगार के पीछे न भागे, बल्कि हम रोजगार देने वाले बने। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और मंच का भी धन्यवाद। Thank you, sir, for such a knowledgeable session. Now it's my pleasure to introduce you to our next guest, Dr. Shivani Kapoor, who has done her PhD in Strategic Human Resource Management and has over 23 years of teaching, training, and research experience at various prestigious institutes. Dr. Kapoor has written and presented research papers in India and abroad, and has won awards for her work. Her case studies and teaching notes are published in leading international journals, including Harvard Business School Publishing. Dr. Kapoor regularly conducts management development programs focusing on organizational behavior, communication skills, and soft skills. Ma'am, I would request you to come here and share the words of wisdom with us. Ma'am. Thank you very much. Good afternoon. I think so my voice is much louder than the combined voice of my students. Good afternoon. Are you feeling sleepy? Are you feeling hungry? No, even no is very, very sleepy and, starving kind of. At least say no with a lot of energy. Are you feeling sleepy? Yes, I could hear some yes coming from the back. Okay. So, very good afternoon to the dignitaries on the dais and off the dais. It's indeed a pleasure to be here at HIT. I feel so good the moment I enter these premises. There was so much of positive vibe here. You people are really lucky to study here because the campus is beautiful. The campus is a blessing for all of you, let me tell you. And this is what I can say and vouch for because of my gray hair, okay? So all the experience that I have, and I've seen so many institutes, I can say that with full 100% surety. Now let me come to the topic without further delay. The topic that we have today is Atmanirbhar Bharat, unpacking education in the context of new education policy 2020. So what I've done is I've picked the first word and the last word, Atmanirbhar Bharat and the new education policy, because they're not different from each other. They're complementing each other. Can we become Atmanirbhar without revamping our education policy? Can we? Yes or no? No. They will have to go hand in hand.
And if you look at the vision that both Atmanirbhar and new education policy have, they both are, wanting to develop a generation that is going, that individuals that are capable of driving economic and social change. When I say economic, we all know, बहुत पैसा कमाना है, ठीक है, इकोनॉमिकली अपने आप को डेवलप करना है, बट दूसरा वर्ड भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और वो है सोशल चेंज. और सोशल चेंज क्योंकि ये वर्ड बहुत ही इनटैंजिबल है, तो इसके दायरे के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती है. इट्स अ वेरी वाइड टर्म and lot of things come under it. I'll come to it in the little latter part of my discussion with you. Can we go to the previous slide, please? Previous slide. The first slide. Yeah. Now, when we talk about, I said I've picked up the first and the last word of the topic. When we talk about Atmanirbhar Bharat and new education policy, Atmanirbhar means that we are self-reliant, self-sufficient. Okay? But is our education system self-reliant? Is the education system of the country, the kind of education that we are giving right now, is it self-sufficient? Institutes like HIT are trying very hard at the grassroots level. But unfortunately, the scenario is different when we see the data and the statistics. आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के चीफ गेस्ट प्रोफेसर सकलानी साहब, प्रोफेसर सत्येंद्र सिंह जी, प्रोफेसर शिवानी कपूर, श्रीमान अनिल भारती जी, प्रोफेसर मधु जसोला और इस संस्थान के चेयरमैन श्रीमान जसोला जी और वाइस चेयरमैन अग्रिम जी, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे चर्चा हो रही है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो विषय है, देश के महान वैज्ञानिक और हम सब के कस्तूरी रंगन साहब, हम सब के आदर्श उसके चेयरमैन रहे, लेकिन उसकी परिकल्पना भारतीय शिक्षण मंडल के द्वारा ये देश को प्रधानमंत्री जी के समक्ष लाई गई. समिति के गठन होने से पूर्व भारतीय शिक्षण मंडल की ओर से आज हमारे बीच में श्रीमान मिश्रा जी हैं, तो आपका स्वागत कर. दयाशंकर जी, मैं आपको इसलिए ले आया, मुझे लगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े रहे, तो आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है. और इस संस्थान के विद्वान शिक्षक साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन मंडल को. उन्होंने जो विषय इसके लिए सेलेक्ट किया, उसमें स्किल भी है, उसमें आत्मनिर्भर भारत भी है और उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी है. कुछ छूटा नहीं है, मतलब जो भी होना चाहिए इस ब्रह्मांड में वो सब उसके अंदर समाहित है. और उसके बाद उन्होंने जिन लोगों को आमंत्रित किया, उसमें श्रीमान भारती साहब, प्रोफेसर शिवानी कपूर जी, प्रोफेसर सत्येंद्र सिंह साहब जो टेक्नोलॉजी से हैं, आप मैनेजमेंट से हैं, और प्रोफेसर मधु जसोला जी और अग्रिम जो युवा भारत का, जैसा आपने कहा, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो कोई छोटा नहीं है. और इसलिए गर्मी में पसीना भी चल रहा है, किसी को भूख भी है, किसी को नींद भी है, लेकिन आपने इतना सब किया. और उसमें सबसे महान जो आपने कार्य किया, वो कार्य किया गुरुजी को आमंत्रित करके. और गुरुजी ने पूरे ब्रह्मांड के बारे में, जो कॉस्मोस का जो बहुत संक्षेप में अपने व्याख्यान के दौरान जो परिचय कराया, उनके प्रति 2 लाइनें मेरी नहीं है, मैं तो चुरा के बता रहा हूँ गुरुजी को प्रणाम करने के लिए. अखंड मंगलाकारम व्याप्तव येन चराचरम. ये जो पूरा कॉस्मोस है, पूरा ब्रह्मांड है, जो सृष्टि है, ये अखंड ब्रह्म का ज्ञान, इस ब्रह्मांड का ज्ञान कराने के लिए अखंड मंडलाकारम व्याप्तव येन चराचरम तद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. आपने उसका हमें ज्ञान कराया, उसका दर्शन कराया. हम तो गांव से निकले और गुरुजी मिल गए और गुरुजी ने हमको प्रोफेसर बना दिया, नहीं तो हम कहीं होते रेहड़ी पटरी चला रहे होते. तो ये गुरुजी के व्यक्तित्व की खासियत है. और गुरुजी को प्रणाम करते हुए अब बोलने के लिए तो विषय आपने इतना बड़ा रखा, उसकी
रेलिवेंस कहें, उसका सिग्निफिकेंस कहें, आज के दौर में बहुत अधिक है। अब लेकिन आत्मनिर्भर भारत और स्किल की बात आज अचानक क्यों होने लगी, और ये विषय जैसा कि भारती जी ने कहा कि 12 मई 2020 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसकी घोषणा की और उसके एक हफ्ते तक लगातार 20 लाख करोड़ का पैकेज भी है, और जो बजट का जीडीपी का 10% है लगभग उस दौर के जीडीपी के आकार को देखेंगे देश के। लेकिन वो विषय क्यों आया, इस पर यदि आप विचार करते हैं तो उससे लगभग 2 महीने पहले पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन हो गया। जब लॉकडाउन हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन, कॉमर्स, इंडस्ट्री पूरी तरह बंद हो गई, और इसके बंद होने से, इसके क्लोजर होने से पूरी तरह से इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर डिसरप्टिव हो गया, पूरा चरमरा गया। उसके चरमराने से उसकी ग्रोथ रेट नीचे चली गई। इंडस्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विसेज के ग्रोथ रेट को मेजर करने का जो पैरामीटर है उसको कहते हैं PMI, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यदि 30 से नीचे जाता है, यानी कि नेगेटिव चला गया, माइनस में चला गया, तो नीचे चला गया। आज आप देखते हैं तो लगभग 60 के करीब है, 60 के करीब है। और किसी भी देश की प्रोग्रेस के लिए 2 ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक होती है उस देश की फॉरेक्स रिजर्व, यानी रिजर्व का आकार। आज हमारे पास लगभग 650 बिलियन डॉलर्स का हमारे पास रिजर्व है। जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे पास बहुत कम रिजर्व था, 7 बिलियन के करीब। और उससे पहले के काल में जाएंगे, एंगस मेडिसन को आप देखेंगे तो 17वीं शताब्दी में हम दुनिया के 27% जीडीपी का हिस्सा हमारा था। एंगस मेडिसन हमारे देश के कोई अर्थशास्त्री नहीं थे। OECD जो ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया के विकसित राष्ट्रों का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उन्होंने जब 2000 का वर्ष चल रहा था तो वहाँ 1000 ईयर्स में क्रिश्चियनिटी के अंदर एक मान्यता है, वो देखते हैं कि 1000 वर्षों में क्या प्रोग्रेस हुई, क्या चेंज हुआ। तो उन्होंने उस 1000 वर्षों के दुनिया के इतिहास लिखने की जिम्मेदारी एंगस मेडिसन को दी।